मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. So before going to discuss these things, let's recap what we did up to yet. तो हमने जो पढ़ा अभी तक, अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसका क्या इफेक्ट और उसके वजह से क्या क्या चीजें होंगी. ठीक है, वहां पर हमने ये देखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट में है, सो इट प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ फील्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल हम रखते हैं, देन वी हैव टू डू सम वर्क. ओके, एंड द चार्ज पार्टिकल आल्सो अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन दैट. ठीक है, मींस हम वहां पर जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था. फिर हमने गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. यस, उसके बाद हमने कैपेसिटर पढ़ा. कैपेसिटर में हमने ये चीज सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है तो इसका मतलब उस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है. मींस हम किसी भी एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. और वो किस टाइप का एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था. देन मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा कि हाउ वी कैन ट्रांसफर एनर्जी. बेसिकली क्या हमने सीखा वहां पर, पहले हमने सोचा कि एनर्जी स्टोर कैसे करवाते हैं, वो हमने पहले 2 चैप्टर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर के अंदर. फिर उसके बाद हमने वहीं पर, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, तो उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो सकता है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं. जिस और एक मशीन जिसका नाम था इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसका काम ही था एनर्जी को ट्रांसफर करना एक जगह से गुड दूसरी जगह. इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक करंट, up to we discuss all those things, how to store the energy, how to transfer the energy. Now in this chapter we will see if a charge particle move. पहले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट में हमने ये पढ़ा था when charge particle is stationary, so what happen. अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी है then what happen. We will see in this chapter if a charge particle move, so what happen. अब यहां पे हमें ये स्टडी करनी है कि if charge particle move, so what will happen. So as we know that if charge particle is in rest, if any charge particle in rest, it produce electric field, it produce a electric field which is a conservative field. What does it mean by conservative field? It is a field in which if we move the charge particle, in which we move the any charge particle, so work done on the charge particle is only depend upon the initial and final position. Okay, so that's why it's called conservative field. But if suppose this charge particle is move, if we have a suppose a charge particle, so if this charge particle is move with some velocity, and I assume that throughout this chapter we assume that the velocity of this charge is constant. Velocity of charge is constant, but in reality maybe it constant, maybe it will vary, but our assumption
throughout the chapter is that what we are considering a charged particle which is move with some velocity, and that velocity is constant. So if a charged particle move with some velocity, अगर कोई charged particle velocity से move कर रहा है, then what happen? So what will be happen? So that is actually we going to study in this chapter. So we know that in this, when charged particle move, it produce again a certain kind of field. Okay, when it is in rest, it produce electric field, but if it move with some velocity, so it produce certain kind of field, that is what magnetic field. So if a charged particle move with some velocity, it produced magnetic field. So how we can produce the magnetic field, we will discuss after the sort of discussion. Okay, first we understand what is the magnetic field and what is the effect of magnetic field on other kind of charged particle. Okay, so we are first discuss the effect. We are going to discuss the effect of magnetic field. Actually we have to discuss two things. यहाँ पे दो चीजें हमें डिस्कस करनी है. How to produce magnetic field. So we know that when charged particle is moved, it produces magnetic field. So we will discuss in detail, but before of that we are just considering the effect. What is the effect of magnetic field? Because Lorentz was the first scientist who observed the effect of magnetic field. Okay, अभी समझ लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है मैग्नेट के थ्रू. Okay, magnet is a we will discuss magnet in very detail in case when we discussing the magnetic property of material. So अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, there is a some kind of material which produce a field which is non-conservative in nature. Very important. Magnetic field actually it can be both. Sometime it is conservative, some kind it will be non-conservative. Okay, so magnetic field may be conservative or may not be conservative, or you simple say non-conservative. तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को मैं एक बार दोबारा डिस्कस करता हूं क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं. तो कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके पास सपोज अगर मैं कहूं कि एक चार्ज है यहां पर रखा हुआ प्लस क्यू, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यूं करके प्रोड्यूस हो रहा है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं, let's suppose we move a charge particle q1 from this position to this position, so it will move by various path. ऐसे करके भी हम मूव करा सकते हैं, ऐसे करके भी मूव करा सकते हैं, ऐसे करके भी मूव करा सकते हैं. तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हमें चार्ज को मूव कराना है, so we do some work on the charge. So when we do some work on the charge, this work is independent from the path. कि आप चार्ज पार्टिकल को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर किस तरह से ला रहे हो, किस रास्ते से ला रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ओके, सो दिस काइंड ऑफ फील्ड हम और जो मूव करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, वो इस फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं. सो दिस फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड. बट नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज व्हाट, जब वो पाथ पे डिपेंड करने लगेगा.
तो मोस्ट ऑफ केसेस हम कंसीडर क्या करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. देयर इज स्पेशल केस वेयर वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, बट मोस्ट ऑफ केसेस वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव. Magnetic field is non-conservative. Means if we move the charged particle, if we move a charged particle in a magnetic field, it depend upon what? It depend upon path. It depend upon path. It depend upon path. Let's suppose we have a two magnet. We have a two magnet, or simply you say that you have a magnet whose only there is a north pole and there will be a south pole. So what happen? That produce magnetic field. This type of material produce magnetic field. How it produce magnetic field, we will discuss this thing. Right now just assume that it produce some kind of field. Okay, field, that is magnetic field. Let's suppose north to south. So this is the way magnetic field is produced. So in this magnetic field, if you move any charged particle, let's suppose we have a charged particle and we are trying to move this charged particle from this position to this position. So there will be this path, number 1, ये वाला पाथ हो सकता है आपका, ये दूसरा पाथ हो सकता है. ठीक है. सो द वर्क डन ऑन द चार्ज, जो इसको हम मूव करा रहे हैं, ये अपने आप मूव नहीं कर रहा. वी हैव डू सम वर्क ऑन दिस चार्ज एंड दैट वर्क is depend upon the path. Okay, so work depend upon the path. Work done on the charge depend upon path when it move in magnetic field. That's why it's called non-conservative field. So now we have to understand what is the effect of this magnetic field. Okay, now effect of magnetic field. Effect of magnetic field. Magnetic field. तो इफेक्ट वर्ड से मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीनिंग ऑफ इफेक्ट? इफेक्ट मीन्स व्हाट? मीन्स सिंपल, हाउ एनीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ थिंग. मतलब कोई किसी तरह से किस तरह से प्रभावित हो रहा है. मीन्स हुआ क्या कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से वो किस तरह से प्रभावित होगा. हिंदी में मतलब इफेक्ट का मतलब प्रभावित. किस तरह से वो प्रभावित होगा? प्रभावित मींस उसके ऊपर किस टाइप के फोर्सेस लगेंगे. कोई चीज किसी से इफेक्ट मींस इन्फ्लुएंस तभी होगा मतलब जब उसके ऊपर उस चीज की वजह से फोर्स जनरेट हो रहा हो, है ना. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. इफेक्ट मींस व्हाट? फोर्स. जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि किसी चार्ज पार्टिकल को रखा, then what happened? That due to this field, what happened? The charged particle experience a force which is electric force. Same to same here. If we suppose we have a magnetic field. Okay, okay. So let's suppose, देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसे डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. देखो ये है आपका तीर का ये हो गया बैक और ये हो गया आपका ये हेड और ये टेल. अगर मैं ये बना रहा हूं ऐसे करके, इसका मतलब तीर जा रहा है अंदर की तरफ. और यदि मैंने ऐसे बनाया तो इसका मतलब तीर आ रहा है बाहर की तरफ. तो यदि मैं कहता हूं ये मैग्नेट का लेट्स सपोज नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नॉर्थ टू साउथ होता है. ये एक तीर है. अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो नॉर्थ पोल होगा किधर होगा? आउटवर्ड होगा,
है ना, और जो साउथ पोल होगा वो अंदर की तरफ होगा, है ना, नॉर्थ आउटवर्ड होगा और साउथ जो होगा अंदर की तरफ होगा। उसी तरह से यदि मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं इस तरह से है, तो इसका मतलब साउथ बाहर है और नॉर्थ जो है आपका अंदर की तरफ है। ओके, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No. यस, No, No, sir. ओके ओके ओके। तो मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। There is a first scientist whose name is Lorentz who actually explained these things. Okay, so ये आपके पास मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ओके, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का बाहर की तरफ है और साउथ पोल अंदर की तरफ है। ओके, दो तरह का फील्ड में भी आप थोड़ा सा समझो, फील्ड भी क्या है, जो भी कोई भी फील्ड हो दुनिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हो, वो दो तरह का होगा। एक होगा स्टडी, दूसरा अनस्टडी। ओके, और स्टडी में भी और क्या होगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, स्टडी भी हो सकता है, अनस्टडी भी हो सकता है। अच्छा, स्टडी का मतलब हुआ कि यदि कोई क्वांटिटी, मींस यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर फील्ड टाइम के साथ, फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, इफ फील्ड इज नॉट चेंज with respect to the time, with respect to the time, that is called steady field। वहीं पर यदि चेंज कर रहा है, if change with time, then it's called unsteady field। change with time is called unsteady field। so अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, up to electromagnetism, very important, we are considering the magnetic field is what is actually study, means magnetic field is not changed with respect to the time। we will see how, what are the cause, क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर सकता है। we will see the all causes कि what is the reason when magnetic field will change with respect to the time। so here we are considering only magnetic field is constant, magnetic field is constant with time, means it does not change with respect to the time। throughout the chapter we are considering magnetic field is study। next is what, uniform or non-uniform। okay, uniform and non-uniform। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ if the magnetic field does not change with respect to the position, meant at each position, means if you have suppose magnetic field in the space and if you consider any point in the space, कहीं पे भी आप चले जाइए स्पेस के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो आपको हर एक जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मिल रही है, सो दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, इफ फील्ड डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज with respect to the position, with respect to the position, means at each position we have same field, सेम टू सेम। आप अभी जब हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे तो फ्लूइड में भी आएगा आपका स्ट्रीमलाइन जो है वो, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं, फ्लो स्टडी होता है, अनस्टडी होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। दैट टाइम वी विल आल्सो डिस्कस दिस थिंग। सो यूनिफॉर्म का मतलब पोजीशन के साथ चेंज नहीं करेगा, पोजीशन के साथ चेंज नहीं करेगा। अभी इतना ज्यादा इसका हम कोई भी आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको ज्यादा अभी यूज नहीं दिखेगा, बट जब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे
उस टाइम पर आपका फिर यहां पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्रॉब्लम आता है। तो वहां पे ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि चेंज नहीं करेगा पोजीशन के साथ, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब पोजीशन के साथ चेंज करेगा। चेंज विद पोजीशन, चेंज विद पोजीशन, पोजीशन। इसको ग्राफिकली थोड़ी समझते हैं। ग्राफिकली क्या होगा इसका मतलब, ये तो हमने लैंग्वेज के फॉर्म में बदल दिया। अगर ग्राफिकली सोचे, मान लीजिए आपके पास किसी भी टाइम टी के ऊपर, किसी भी टाइम टी के ऊपर ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। प्लीज कैमरा ऑफ कर लो। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है आपका एट, मान लो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। किसी भी टाइम पर यही पैटर्न रहे, हर एक टाइम पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का यही पैटर्न हुआ, मतलब पैटर्न चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस टाइप का फील्ड हुआ, यूनिफॉर्म स्टडी फील्ड हुआ। स्टडी, अगर पैटर्न, इसको इस तरह से कह सकते हैं। और दूसरा, इफ द पैटर्न, इफ द पैटर्न, पैटर्न और फील्ड लाइन, फील्ड line, field line is imaginary lines, magnetic field line is imaginary lines, so field lines does not change with the time, does not change with time, so that is called study. but if pattern fluctuate कर रहा है, मतलब t equal to 0 पे ऐसा पैटर्न था, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो गया, so what happened, so pattern जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का है वो क्या कर रहा है, आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है, so that is unsteady. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, पिक्चरली समझे तो, अगर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे करके है, पैरेलल लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बट ये सभी के सभी क्या है, पैरेलल लाइन है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस पोजीशन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस पोजीशन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so vector quantity have both magnitude as well as direction. Direction. Yes, so what happen, you can say if the magnetic field lines are parallel, magnetic field lines are parallel or equally spaced, parallel and equally spaced means what, the magnetic field is uniform, it does not change with the position, so we get same magnetic field. But let's suppose if we have this kind of field line, this kind of magnetic field lines, so what happened, you can see they are not parallelly spaced, so whatever we suppose यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो यहां पर आपको B2 मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का, लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, सो यू कैन नॉट से B1 इज नॉट इक्वल टू B2, मींस ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मींस अगर लाइन के बीच का स्पेस चेंज कर रहा है पोजीशन के साथ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एंड दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। सो ओके, यस, तो हमने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, ये जो डॉट, ये क्रॉस साइन जो भी बनाया है, ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ऑल, एंड सभी एक ही डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, मींस वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म magnetic field, uniform magnetic field. So we are going to discuss the effect of this field. इफेक्ट किसी चीज पे देखा जाता है, इफेक्ट जो है हम किसी चीज पे देखेंगे कि इसका इफेक्ट किसी पे क्या होगा, ओके, सो इफेक्ट यहां पर हम किस पे इवेल्युएट करेंगे, चार्ज के ऊपर,
इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे इस फील्ड के वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। So suppose we have uniform magnetic field. You have uniform magnetic field. तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, ऐसे करके रख दिया। दिस एक्चुअली जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज लॉ, ओके। सो वी डोंट हैव एनी प्रूफ, बिकॉज लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, इट इज प्रूव बाय सम एक्सपीरियंस और बाय सम ऑब्जर्वेशन। लॉज आर ऑलवेज प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, नॉट मैथमेटिकली, ओके। सो दैट्स व्हाई इज लॉ, कानून है ये, ओके, फिजिक्स का कानून है। सो दैट इज व्हाट फिजिक्स का कानून यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल हमारे पास है और इसको हम लोग जाकर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो क्या होगा। अगर यहीं पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो भाई क्या होता, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता और ये मूव कर जाता, ओके। क्योंकि फोर्स लगता है किसी चीज पे, तो फोर्स की वजह से क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन आता है उसके पास और वो मूव करने ले जाता है। पर लॉरेंज ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये फील्ड जो है मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, इसमें यदि हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो ये मूव मोशन में नहीं आएगा, ये जहां पे रखा हुआ है वहीं पे रहेगा, ना इधर गया ना इधर गया ना इधर गया ना इधर गया। मींस दिस फील्ड डज नॉट इफेक्ट, इसका इफेक्ट इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ भी नहीं आया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसका ये था, इफ चार्ज पार्टिकल, if charge particle in rest in magnetic field, no effect, no effect, no effect, okay। now अब क्या किया उसके बाद, now what happened, इसको मूव कराना स्टार्ट किया। लेट्स सपोज इट मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। इसको मूव कराना स्टार्ट किया इसने, कि लेट्स सपोज चलो रेस्ट में था तो कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बट अब इसको मूव कराते हैं तो फिर क्या होगा। तो जब मूव कराया तो उसने ये देखा कि जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट ये गया इस डायरेक्शन में नहीं, ये इस डायरेक्शन में नहीं गया, ये अब इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो कुछ इस रास्ते से गया, ये जो पिंक वाला लाइन बनाया है इस रास्ते से ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लग गया। जाना चाहिए था इसको सीधे सीधे, बट ये सीधा गया नहीं, ओके, क्योंकि और वो इस वाले पाथ को फॉलो करने लग गया। मींस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैंने क्या वर्ड यूज किया, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड नहीं बोला मैंने, मैंने कहा डायरेक्शन चेंज हो गया। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस, ओके। सो दूसरा इफेक्ट ये दिखा हमको कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव 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 विद some speed in a plane which is perpendicular, or you can say across the, perpendicular से बढ़िया, across the magnetic field, so it, इसका इफेक्ट दिखा, मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर इफेक्ट दिख रहा है, जाना चाहिए था इसको सीधे सीधे, बट अब क्या इफेक्ट दिख रहा है, ये सीधे सीधे गया नहीं, means it experienced some kind of force. I will discuss what kind of force. So यहां पर डायरेक्शन इफेक्ट क्या आया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज इज चेंज। नाउ अब क्या क्या एक केस और करके दिखाया कि अभी तो हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहे थे। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो मैंने प्लेन बनाया है, ये जो प्लेन बनाया है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इस प्लेन के अंदर चाहे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ हो या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ हो,
या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, ये सभी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दैट ऑल वेलोसिटीज, क्योंकि ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेलोसिटी इस प्लेन के अंदर ऑलवेज, यहां पर इस वाले सिचुएशन में वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। अक्रॉस ऑफ द फील्ड का मतलब है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या किया, थर्ड चीज क्या देखा इसने, ये किया कि एक काम करते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके हम चार्ज पार्टिकल को हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव नहीं कराएंगे, हम पैरेलल टू जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे। मींस हमने वेलोसिटी दी चार्ज पार्टिकल को, बट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर देखा उसने कि जब ऐसा कर रहे हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव along the magnetic field, no change in velocity. So these three observation actually see by the Lorentz. तो लॉरेंज ने तीन तरह का ऑब्जर्वेशन देखा कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं सिर्फ, तब भी उसके ऊपर कोई प्रभाव मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पड़ने वाला है, या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं तब भी उसका ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बट वहीं पर उसके अक्रॉस मूव करा रहे हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो उस इंसान ने ये अंदाजा लगाया कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो एक्चुअली तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ओके, और अच्छा एक ऑब्जर्वेशन और रह गया जो मैंने नहीं बताया, एक ऑब्जर्वेशन उसने और किया कि यदि इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तब भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इफ वी चेंज, वी विल से इफ वी चेंज B, then velocity is change. तो पहला देखा कि अगर हम लोग वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हैं तो भाई उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वेलोसिटी, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर डायरेक्शन में है तो फोर्स जीरो होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट उसके उस डायरेक्शन में नहीं है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। सो वेलोसिटी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा था उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड यदि मान लो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है अलग अलग जगह पे अलग, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता, तो अलग अलग टाइप का इफेक्ट उसके ऊपर उसे महसूस करता। तो मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा वेलोसिटी का, और तीसरा चार्ज का कैसे, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएंगे तो कुछ और दिखेगा, अगर हम प्रोटॉन्स को मूव कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों सेम है, अगर सपोज हीलियम पार्टिकल को चार्ज, एक हीलियम हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस है, उसको मूव कराएंगे, अल्फा पार्टिकल सॉरी हीलियम ने अल्फा पार्टिकल, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराते हैं, सो दैट दे गेट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट, ओके, दैट डज नॉट फील सेम काइंड ऑफ इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट। So means the effect on the charge particle, actually जो effect है means force, effect का मतलब force on charge particle is actually function of charge, charge के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा velocity and तीसरा magnetic field. So this is actually felt by Lorentz. सो उसने इस सारे ऑब्जर्वेशन को
लगा करके और एक फॉर्मूला दिया कि मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा, किसी भी मैग्नेटिक, कोई मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो एक्ट करेगा क्यू वी क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, मींस उसका जो इफेक्ट होगा, वो होगा क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। अब इस फॉर्मूले को अगर आप सोचोगे, तो जो मैंने यहां पे डिस्कशन किया, ये फॉर्मूला आपको सारा वही बात बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर, ओके, सो दिस इज व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट। दो, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी नो दैट v क्रॉस b अगर हम निकालेंगे तो वो देगा v b साइन थीटा। ओके, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम? हेलो, ओके। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पे डिस्कशन कर लेता हूँ, शायद किसी को पता हो ना हो, आई डोंट नो। ओके, सो लेट्स आई जस्ट डिस्कस, ताकि यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम समझ सके। ठीक है, तो ये था कुछ। सपोज मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है, ये शॉर्ट डिस्कशन है। ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपका बी है, और मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। प्लीज माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है। इनके बीच में एंगल कितना है, लेट्स सपोज थीटा है, थीटा इज द एंगल। जो डाउट पूछना हो तो ऑन करना, नहीं तो बंद कर लो, कुछ ना समझ में तो। यस, तो ए क्रॉस बी सपोज हमें निकालना है, तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं? सपोज ये ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू साइन थीटा, इनटू में एक और वेक्टर आएगा एन कैप। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। मींस ये जो एन कैप है, इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, perpendicular to both a vector and b vector. And how we get this n cap? By using right hand screw rule, by using right hand screw rule, right hand screw rule. So what we have to do? First put your all finger, right hand screw rule सबको आता होगा, first put your all fingers on vector a, all fingers on a, and rotate toward the b. ए पे हाथ रखना है, बी की तरफ घुमाना है, सो थंब कम आउटवर्ड, मींस एन कैप इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दैट इज व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप सबको ये सब पता होगा, आई थिंक नो। तो यदि मुझे सपोज ये आपके पास, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मींस लेट सपोज वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है। दिस चार्ज पार्टिकल इज मूव विद सम वेलोसिटी, दिस द थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड दिस द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, दैट इज इक्वल टू, मैंने बताया क्यू वी क्रॉस बी होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि वी क्रॉस बी हो गया वी बी साइन थीटा, इनटू
एक आएगा आपका एफ और एन कैप। ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। और ये निकालेंगे कैसे? अगेन यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल। फर्स्ट यू पुट ऑल फिंगर्स ऑन वी वेक्टर and rotate toward B vector. So thumb come outward. So magnetic force is actually acting in outward direction. Outward direction में लग रहा है। Magnetic force acting in outward direction. Velocity के भी perpendicular होगा और magnetic field के भी perpendicular होगा। Means this F vector, this force is perpendicular. Very important, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर, ठीक है। So is perpendicular, all our theory is very important, is perpendicular to v vector, velocity के perpendicular होगा और magnetic field के भी perpendicular होगा। velocity के भी perpendicular होगा और magnetic field के ही perpendicular होगा। और निकालेंगे कैसे? राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके, ठीक है। मैं अभी कोई भी रूल नहीं बता रहा, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट कुछ नहीं बता रहा, जस्ट योर यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, राइट हैंड स्क्रू रूल। फर्स्ट पुट योर ऑल फिंगर ऑन v vector and rotate toward b vector, so that will come outside. Okay, remember only one rule, flaving or not, कोई रूल वोल मत याद करो, सिर्फ राइट हैंड स्क्रू रूल याद रखो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो v क्रॉस b, तो यहां पर मैंने क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप बोला, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अब यहां पे देखिए, ये जो फोर्स है वो एक तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो कि ऑब्जर्व किया गया था कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को मूव कराएंगे तो उसके ऊपर कुछ और फोर्स लगेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएंगे तो उसके ऊपर कुछ और फोर्स लगेगा, अगर हम प्रोटॉन्स को मूव कराएंगे तो उसके ऊपर कुछ फोर्स और लगेगा। दूसरा, वेलोसिटी के ऊपर, किसकी स्पीड कितनी है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका प्रेजेंट है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये थीटा, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। तो यदि सोचो थीटा अगर 0 हो गया, मींस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। और मैक्सिमम कब लगेगा फोर्स? जब थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। थीटा यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो QVB लगेगा, जो कि इस वाले केस में था। अभी जैसे मैंने बताया था, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और इसमें चार्ज पार्टिकल हम लोग मूव करा रहे हैं वो इधर की तरफ मूव करा रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो आपका सबसे ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। सो मींस मैग्नेटिक फोर्स, अगर वेलोसिटी 0 होगा चार्ज पार्टिकल का, नो मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी 0, नो मैग्नेटिक फोर्स। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ, नो मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज द व्हाट लॉरेंज, ये जो फॉर्मूला दिया बाय द सम ऑब्जर्वेशन, and that is what Lorentz, it's also called Lorentz force, okay, Lorentz force, okay, yes, okay, one thing यहां पर मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है। मुझे एक चीज सब बताओ कि यदि मैं कोई भी चार्ज अगर कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, और अगर मैं इस पे फोर्स इधर की तरफ ही लगाऊं तो क्या होगा? मींस वेलोसिटी एंड फोर्स आर पैरेलल। क्या होगा? इनका एंगल 0 डिग्री बनने का तो नहीं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई पार्टिकल जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है,
अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो क्या होगा इसके साथ? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हाँ, सेम लाइन में मूव करेगा, बट क्या होगा वेलोसिटी के साथ? क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा या वही रहेगा? अरे वेलोसिटी चेंज करेगा या वही रहेगा? अरे वेलोस चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी का क्या है? दोनों चीज है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर आपने फोर्स लगाया, अगर फोर्स नहीं लगाते तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यदि आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, तो इसका वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या चीज चेंज करेगा वेलोसिटी का? मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ओके, व्हेन वेलोसिटी और फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? देन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल से कंसेप्ट है। बट लेट्स सपोज let's suppose let's suppose if we have a velocity in this direction, now we are applying a force in this direction. Here force is perpendicular to velocity. So बताओ velocity change करेगा नहीं करेगा? चेंज करेगा, बट डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यस यस, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बट इस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये पार्टिकल इधर ना जा करके ये इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर, मींस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। सो व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, so then only magnitude, sorry, direction only direction of velocity change. So why we discuss this thing? Because we need this thing, because we know that, कैसे? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि यदि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है। वी अज्यूम दैट यूनिफॉर्म, आई एम अज्यूमिंग दैट यूनिफॉर्म, बट इट डज नॉट नेसेसरी। ओके, आई एम अज्यूमिंग। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो मान लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल को मूव कराया विद सम वेलोसिटी। सो वी नो दैट it experience magnetic force, it experience magnetic force. Okay, but in which direction? अभी मैंने फॉर्मूला बताया, F vector is equal to Q V cross B, and we know that this F vector is perpendicular to both. F vector is perpendicular, magnetic force is perpendicular to velocity and as well as B. So what does it mean? अब पहले हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग व्हाट? राइट हैंड स्क्रू रूल। यूज योर राइट हैंड स्क्रू रूल। वेलोसिटी पहले कौन सा वेक्टर लेंगे? वेलोसिटी को। वेलोसिटी किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। पुट योर ऑल फिंगर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, एंड रोटेट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? अंदर की तरफ है। रोटेट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ घुमाओ। देन thumbs come in which direction? Left direction. Means what? This will experience a force, but in which direction? In this direction. This is the magnetic force. Again मैं इसका डायरेक्शन बता रहा हूं कैसे निकाला। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो पुट ऑल फिंगर्स, चारों फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, एंड रोटेट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ ले जाओ। देन थम्स कम इन लेफ्ट डायरेक्शन, सो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स which is perpendicular to velocity, that is magnetic force. So due to this force what happened? Due to this force only direction will change,
मींस पहले ये इधर की तरफ जा रहा होगा, देन इट विल नॉट गोज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, दिस विल मूव इन दिस फैशन, in this fashion. Okay, so what happened? The direction is change. Direction is change. Means it's follow certain kind of curve, certain kind of curve. Okay, so in we know that अगर 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 हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता, अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम चार्ज को मूव कराते, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता, तो फोर्स जो लगता उसके ऊपर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में मैग्नीट्यूड चेंज करता, उस केस में मैग्नीट्यूड चेंज करता वेलोसिटी का। बट यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा, ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो दैट इज व्हाट लॉरेंस फोर्स। रिमेंबर, ड्यू टू दिस फोर्स ओनली ओनली व्हाट हैपन, डायरेक्शन चेंज। लिख देता हूं मैं, ड्यू टू दिस फोर्स, this force only direction of velocity change. Okay, तो okay, एक चीज और थोड़ा सा नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट। ओके, सो व्हाट हैपन, लेट्स सपोज आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये बहुत ज्यादा ही स्पेस में है, मतलब छोटे से रीजन में नहीं है, हर एक जगह इतना है कि मतलब इनफाइनाइटली आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके। और यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं, यदि हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इनफाइनाइट है मींस पूरा इधर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, सो इट प्रोड्यूस, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मान लो यहां पे जब चार्ज पार्टिकल पहुंच जाएगा, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तब भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि हमेशा, क्योंकि मोशन में है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। वेलोसिटी अब इधर की तरफ हो गया, बट मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ होगा, तो ये हमेशा लगेगा। फिर ये यहां पे पहुंचेगा मान लो, तो इस जगह पे भी वेलोसिटी इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, बट मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ। इसी फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो व्हाट हैपन, दिस विल एक्चुअली फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ, इस तरह से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। ओके, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए अगर हम इनफाइनाइट रीजन के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है, तो व्हाट काइंड ऑफ पाथ इट परफॉर्म, किस टाइप का पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ। ओके, सो इट विल गोज इनटू सर्कुलर मोशन, it goes into circular motion, it goes into circular motion, it goes into circular motion, very important, it goes circular motion. So this force is always acting in this direction, radially inward, ये जो magnetic force होगा that always acting in radial direction and it perform circular path. But let's suppose हमारे पास एक और सिचुएशन लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज वी इन दिस डायरेक्शन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, suppose in the direction we have magnetic field, और इसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराया विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, ओके, v वेलोसिटी के साथ मूव कराया,
but right now you can see this will not perpendicular to, ये जो मैग्नेट, ये जो वेलोसिटी है is not in perpendicular, velocity is not perpendicular to magnetic field, it makes some angle theta, very important. यहां पर अभी जो सिचुएशन देखा था, अभी क्या सिचुएशन देखा था, यहां पर देखा था वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बट ये वाला सिचुएशन क्या है, वेलोसिटी is actually not perpendicular, यहां पे velocity is not perpendicular to B. So what happen, it will again follow certain kind of path. Can you give me answer what kind of path is followed by this charge particle? Yes, anyone think? Circular path है, okay, Yes, correct. यहां पे भी आप कह रहे हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, तो पाथ सर्कुलर होना चाहिए था. हाउ साइक्लोइडल? ओके, देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा विच इज v cos थीटा, और एक जो कंपोनेंट जिसे हम लोग vx भी कह सकते हैं या अलोंग द वेलोसिटी, ठीक है, v cos थीटा होगा, और एक कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का, विच इज v sin थीटा. अब सोचिए वेलोसिटी का ये जो हिस्सा है, ये जो वेलोसिटी के मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ओके, तो इस वाले वेलोसिटी, अभी जैसे मैंने आपको बताया यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स जीरो लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगता है. मींस इस वेलोसिटी की वजह से, इस v cos थीटा की वजह से, इस v cos थीटा की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा. इसके मैं इसको Vx लिख देता हूं, इसके वजह से Vx की वजह से नो मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू दिस, ड्यू टू Vx नो मैग्नेटिक फोर्स. But what happen, there will be v sin theta which is Vy and that is perpendicular to velocity. So इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसके से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. So due to Vy magnetic force. But how, फोर्स कैसे निकाले डायरेक्शन, फर्स्ट पुट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स है, v sin थीटा की वजह से फोर्स है, तो अपने सारे फिंगर्स को v sin थीटा पे पुट करो, सारे फिंगर्स को v sin थीटा पे ले जाओ. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने थंब्स को, सारे फिंगर्स को रोटेट करो. रोटेट किया तो थंब्स गोज इनसाइड, थंब गोज इनसाइड, v sin थीटा पे रखिए अपना सारा हाथ फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाइए, तो आपका थंब जो जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है. मींस इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, ये फोर्स जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा. तो इसके परपेंडिकुलर होने से, इस फोर्स के परपेंडिकुलर होने से और इस वेलोसिटी की वजह से फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये किस टाइप का पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा. बट ये जो सर्कुलर पाथ बनेगा, सोचो सर्कुलर पाथ जो बनेगा, ये जो सर्कुलर पाथ बना, ये जो सर्कुलर पाथ बना, ये पाथ, ये जो पाथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, है ना. v sin थीटा के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है. v sin थीटा पे हाथ रखिए, b की तरफ घुमाइए तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ. तो इसके वजह से जो पाथ प्रोड्यूस होगा, इस वेलोसिटी की वजह से जो पाथ प्रोड्यूस हुआ वो क्या प्रोड्यूस हुआ, सर्कुलर. दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू Vy, ड्यू टू Vy. बट साथ में क्या है, v sin थीटा है, इस वाले वेलोसिटी के साथ इसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ऐसे. v
साइन थीटा की वजह से, इसकी वजह से, इस वाले वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो परपेंडिकुलर लगा, जिसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस हुआ। बट इस वाले वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, एक लीनियर मोशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में एक लीनियर मोशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल दोनों टाइप का मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है। ध्यान से समझिए, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है। अपने हाथ को घुमाओ, जैसे अपने फिंगर्स को घुमाओ ऐसे, जैसे स्प्रिंग होता है, तो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, साथ में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, साथ में ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो v साइन थीटा की वजह से, v साइन थीटा की वजह से, देखो किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछना, ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कई बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके वजह से सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन, और इसके वजह से, इसके वजह से, इसकी वजह से ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो किस टाइप का पाथ प्रोड्यूस किया, एक स्प्रिंग बोल रहा ना, स्प्रिंग जैसा होगा, सर्कल भी है, साथ में घूम रहा है आगे की तरफ, सो हेलिकल, दैट कॉल हेलिकल, साइनोसॉइडल नहीं, साइनोसॉइडल अलग आएगा, वो अलग टाइप है, दैट इज हेलिकल, दैट इज हेलिकल, helical, very important. So when velocity is not perpendicular to magnetic field, so it produce helical path, helical path, helical path. So here we can see what we observe, that हम एक्चुअली इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ये है, मतलब फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ विल प्रोड्यूस, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ, अलग अलग पाथ, अलग अलग टाइप का पाथ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस कर रहा है, और यदि आपका कुछ एंगल के ऊपर है तो सर्कुलर साथ साथ ट्रांसलेशन, सर्कुलर साथ साथ ट्रांसलेशन। और यदि वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है तो कोई भी टाइप का जो है पाथ प्रोड्यूस नहीं, सिंपल, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा उसके ऊपर। एंड दैट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस, एंड आल्सो वी विल, आगे हम देखेंगे कि अलग अलग पाथ में मूव करने से क्या होता है कोई चार्ज पार्टिकल, यू नो दैट, आगे हम जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि चार्ज के मोशन की वजह से क्या होता है। चार्ज के मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल जब मोशन करेगा देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल सी हाउ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ओके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप का पाथ होगा तो उसके उसकी वजह से अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, और उसकी वजह से अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेव जनरेट होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है, अलग 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 टाइप के लाइट्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये सब होता है। बहुत वाइड एप्लीकेशंस है, इसीलिए कनेक्ट रहोगे, एक एक चीज को थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा खासा जो है आप यहाँ पे चीजों को जान सकते हो। फिलहाल समझो कि यदि मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ वेलोसिटी सर्कुलर पाथ और दूसरा हेलिकल पाथ, अप टू एनी प्रॉब्लम? हेलो सर ये हेलिकल पाथ वाला दोबारा बताना। ओके, मैं दोबारा बताता हूं। हेलिकल पाथ में मैंने ये बोला कि मान लो जैसे सपोज दैट, ओके, जस्ट स्प्रिंग देखा आपने, स्प्रिंग ये होता है, स्प्रिंग ये ऐसे करके स्प्रिंग होता है, ओके, ये स्प्रिंग ऐसे करके होता है। तो स्प्रिंग में क्या हुआ, एक तो सर्कल बन रहा है और साथ में देखो इधर की, अगर आप इस मान लो चीटी बन करके, चीटी बन जाओ, है ना, चीटी चीटी बन गए, है ना, चीटी 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 ऐसे करके, और इसमें इस पे घूमना स्टार्ट करो, तो होगा क्या, आप क्या महसूस करोगे, आप एक तो सर्कल में घूम रहे हो और साथ में ट्रांसलेट कर रहे हो, सर्कल में घूम रहे हो यस सर। और ट्रांसलेट कर रहे हो। ठीक है, तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। ये मान लो आपके पास, ये देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी,
ये हो गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए, एक कंपोनेंट इधर की तरफ v cos थीटा और एक कंपोनेंट आया v sin थीटा। और हमें पता है इस v cos थीटा की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होगा, नो मैग्नेटिक फोर्स, बट इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसके वजह से होगा। मैग्नेटिक फोर्स होगा। वो क्या होगा? ओके ओके, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो होगा आपका, क्या होगा? दैट इज mv, सॉरी qvb sin थीटा, है ना, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके? सोचो, परपेंडिकुलर होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के। तो जो Yes, फोर्स है ना, अभी देखा हमने, अभी कुछ देर पहले देखा था, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी वजह से कैसा पाथ प्रोड्यूस हो रहा है? सर्कुलर, उसकी वजह से yes sir. सर्कुलर। Circular. और सर्कुलर पाथ किस में प्रोड्यूस हो रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये वाला जो प्लेन है Yes sir. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो v sin थीटा है, इसकी वजह से जो पाथ प्रोड्यूस होगा सर्कुलर, इसकी वजह से पाथ होगा सर्कुलर। Circular. हाँ, जो किसके परपेंडिकुलर होगा? जो किसके परपेंडिकुलर होगा? Magnitude के. मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, ये पाथ प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड के। बट ये जो v cos थीटा है, ये v cos थीटा क्या करेगा? इस पार्टिकल को आगे भी ट्रांसलेट कराना स्टार्ट कर देगा। आ रहा बात समझ? Yes. यस। तो मुझे समझाओ क्या से करें, क्या करें? हेलो, Yes. क्या से प्रोसीड करें क्वेश्चन को? क्या बोला है? पार्टिकल, ओके, कनिष्का, हेलो, ओके, सो आई डिस्कस। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और ये दे रखा है क्या? एक्सेलरेशन। अभी इतने देर से मैंने एक चीज बोला, क्या बोला मैंने? कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड। अभी बोला मैंने, Magnetic field. हाँ, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिc field, simple. And now what is the magnetic force? That is mass into acceleration. So whatever the direction of force is a force of, it is a direction of acceleration, simple. So acceleration is also perpendicular to what? Magnetic field. So acceleration is perpendicular to magnetic field. अगर perpendicular है, इसका मतलब क्या है? कि यदि मैं a डॉट b, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, दिस इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या करेंगे? देखो, हमने थ्योरी क्या लगाया? हमने लॉरेंज लॉ लगाया कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल मैग्नेटिक फील्ड। सो a डॉट b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू थिंग्स? a वेक्टर इज xi कैप प्लस 2j कैप डॉट, व्हाट इज b? 3i कैप प्लस 4j कैप into 10 the power minus 2 equal to 0। क्या हो जाएगा? i डॉट i1 j डॉट j1 बाकी 0। तो 3 into x into 10 the power minus 2 -2. plus 8 into 10 the power minus 2 equal to 0। So what is the x? X equal to minus 8 by 3 meter per second square। Answer very simple। Okay, Yes sir. yes, let's do some more problem। Okay, Yes sir. yes, a charge particle move in magnetic field, which is b is equal to 2 into 10 the power minus 3 2 Tesla,
देखिए यूनिट याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है टेस्ला होता है। टेस्ला। हाँ टेस्ला। with velocity 2 meter per second, which is perpendicular to magnetic field. Okay, a charge particle carry charge 2 meter, 2 coulomb. Find the radius of circular path produced by charge. Okay, and mass, and also mass of charge particle is 10 to the power minus 3 kg. Yes,